So, hello friends. Today we are going to discuss about the industrial production of amino acid glutamic acid. Glutamic acid. So it is one of the so that's why it is produced at industrial level. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर इसका प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन स्ट्रेन सो प्रोडक्शन स्ट्रेन हम कौन सी यूज करते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो हम इस्तेमाल करते हैं क्वारिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम so we use bacterium that is Corynebacterium glutamicum. So this is the industrial strain or production strain glutamicum. Okay, so for production of glutamic acid. अब इस स्ट्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्ट्रेन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो इट इज अ बैक्टीरियम इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम एज वेल एज इट इज नॉन स्पोरुलेटिक एंड नॉन मोटाइल तो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है इट इज अ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सो इट इज नॉन स्पोरुलेटिक ये स्पोर्स तैयार नहीं करता है और इट इज नॉन मोटाइल सो दिस ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नॉन मोटाइल सो दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर बायोटीन एज ए ग्रोथ फैक्टर सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर बायोटीन एज ए ग्रोथ factor. So what is growth factor? So anything which is required in medium. So without which organism is unable to show particular trait. जो particular trait या characteristic नहीं दिखा सकता है. Okay. So this strain shows little activity of alpha ketoglutarate acid dehydrogenase. So this strain also shows little activity of alpha ketoglutarate dehydrogenase. So why this characteristic is important? If this organism will produce alpha ketoglutarate dehydrogenase तो क्या होगा दोस्तों so this alpha ketoglutarate is converted into succinyl-CoA so this is one of the reaction of tricarboxylic acid cycle तो ये one of the reaction है तो हम अगर glutamic acid का conversion that is alpha ketoglutamate acid का synthesis अगर करना है so this alpha ketoglutarate must be converted into glutamic acid and not into this तो यही एंजाइम का काम होता है दैट इज अल्फा ketoglutarate dehydrogenase क्या करता है सो इट कन्वर्ट अल्फा ketoglutarate into succinyl-CoA so shows increased activity of glutamate dehydrogenase यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा दैट इज glutamate dehydrogenase okay so the reaction requires involvement of NADH okay so this enzyme will bring about the amination of reductive amination of alpha ketoglutarate into glutamic acid so that's why this enzyme is very very important
So mutant of this organism, that is Corynebacterium butylicum. Okay, butamicum, Corynebacterium glutamicum. So secretes a large amount of L-glutamic acid. So जैसे कि some strains of Corynebacterium glutamicum are able to convert 40% of carbon, that is glucose, into glutamic acid. So in presence of 100 milligram per liter of biotin, जो कुछ स्ट्रेन्स रहेंगी ये क्या करेंगी, तो some strains are able to convert, क्या convert करेंगी, around 100% sugar जो रहेगा, so it is converted into 40% amino acid. That is हमारा अमीनो एसिड कौन सा है दोस्तों, so it is glutamic acid. 100% मतलब हमारे पास अगर 100 ग्राम शुगर है, so यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड होगा, so that is around 40 ग्राम. ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है कि जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं, now it is converted into amino acid. जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमारा जो बायोटिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना चाहिए, सो इट इज अराउंड 100 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बायोटिन, तो ये प्रोसेस हमारी होती है. ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन स्ट्रीम ऑफ ग्लूटामिक एसिड. सो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, दैट इज बायोकेमिकल पाथवे. अब बायोकेमिकल पाथवे मतलब क्या होगा, सो बायोकेमिकल पाथवे मतलब किस मेथड से इसका बायोकेमिकली सिंथेसिस होगा. अगर आप फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं ग्लूकोज एज ए कार्बन सोर्स, तो हमें पता है इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ठीक है, पायरुविक एसिड में इसका कन्वर्शन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ईएमपी पाथवे. सो नाउ ये जो पायरुवेट होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A. So now this acetyl coenzyme A will enter into tricarboxylic acid cycle. So here oxaloacetic acid जो है, so it will combine with acetyl CoA and will give citrate. So क्या होगा, sequentially this citrate is converted into alpha ketoglutarate. तो हमने पहले देखा है कि दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. सो दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स NADH plus H. It is converted into NAD. So this enzyme will bring about the conversion or reductive amination of alpha ketoglutarate into glutamate. तो ये सिंपल सा बायोकेमिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होता है. तो दिस इज द बायोकेमिकल पार्ट. अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, सो अल्फा ketoglutarate is converted into succinate, which is then converted into oxaloacetate via variety of intermediates. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, this enzyme is very active in this organism, that is glutamate dehydrogenase rather than alpha ketoglutarate dehydrogenase, जो यहाँ पे एक्ट होगा. So now effect of permeability on glutamic acid production. Permeability मतलब क्या है, what is permeability, whether this cell is able to secrete this particular acid or not. अब परमेबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा और यह परमेबिलिटी कभी कैसे इंक्रीज करेंगे हम, सो व्हाट इज इट्स इफेक्ट.
अब हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट है सो इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड दिस सेल। अब सेल के अंदर बन रहा है, हमें क्या करना है इसको, सो वी वांट टू रिलीज दिस इनटू मीडियम। ओके, मीडियम में रिलीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो दिस मेम्ब्रेन शुड बी वीक। अब इस ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए दैट शुड बी वीक होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस है उसके लिए। ओके, परमियाबिलिटी के लिए क्या करेंगे, परमियाबिलिटी। अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस है। सो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बायोटिन की डेफिशिएंसी, बायोटिन डेफिशिएंसी मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे बायोटिन का हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, सो बायोटिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। यानी कि उसके जो प्रोटीन लिपिड्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बायोटिन चाहिए होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मेम्ब्रेन्स प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होगी, वहां से क्या होगा, लीकेज होगा। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड पेनिसिलिन, दैट इज एडिशन ऑफ पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन भी अगर ऐड करते हैं तो वहां पे परमिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्या कर सकते हैं हम, सो वी कैन ऐड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड एडिशन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं। देन थ्रू ग्लिसरॉल डेफिशिएंसी, और क्या करेंगे, थ्रू ग्लिसरॉल डेफिशिएंसी, इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द डेफिशिएंसी। तो हमें क्या करना है, परमिएबिलिटी जो है स्ट्रेन की क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, सच दैट इट विल रिलीज दिस ग्लूटामिक एसिड इनटू मीडियम। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सो कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन। ओके, कंडीशन फॉर प्रोडक्शन। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बन, या आप बोल सकते हैं कार्बन सोर्स। ठीक है, तो कार्बन सोर्स की अगर बात करें तो हम ज्यादातर टाइम पे सो वी कैन यूज ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो ये जो है सो दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्सेस। और क्या यूज कर सकते हैं हम, वी कैन यूज स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड, देन फ्रुक्टोज। अदर सोर्सेस में हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन ऐड माल्टोज, राइबोज एंड ज़ाइलोज। तो ये बहुत सारे सोर्सेस हैं, अदर में आएंगे। सो अदर सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, दैट इज स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड और फ्रुक्टोज और माल्टोज। तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कार्बन सोर्सेस। सो मोलेसेस, फॉर एग्जांपल cane molasses and beet molasses, so they can also be used. Okay, so it also contain biotin. So molasses, ठीक है, so it also contain biotin। बायोटिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मोलेसिस मतलब कौन से, एक तो शुगर बीट या बीट मोलेसिस, या फिर शुगर केन मोलेसिस।
सो दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, बायोटिन। बायोटिन का हमें पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, सो इट इज प्रेजेंट एट अराउंड 0.4 टू 1.4 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसके आसपास क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है इन शुगर केन मोलासेस या फिर केन मोलासेस। Then in beet molasses it is present at very low concentration, that is around 0.02 to 0.08 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, हम और बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो पेनिसिलिन हमें ऐड करना है, यहाँ पे है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो व्हेन these molasses are used in the medium preparation because they increase the cell permeability of glutamic acid। सो जनरली हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन अगर करना है तो वी जनरली प्रेफर केन मोलासेस और स्टार्च हाइड्रोलाइजेशन। ओके, तो ये जनरली हम यूज अगर करेंगे मोलासेस, देन वी शुड यूज पेनिसिलिन। बाकी के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो नहीं होने चाहिए। So then नाइट्रोजन का सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या होना चाहिए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये यूज कर सकते हैं आप। अमोनियम सल्फेट, देन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एज वेल एज अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट के बाद आप यूज कर सकते हैं एक्वियस अमोनिया, देन अमोनिया गैस, यूरिया। ओके, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, देन अमोनिया गैस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अमोनिया गैस। और क्या यूज कर सकते हैं आप, सो यू कैन आल्सो यूज यूरिया एज वन ऑफ द नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, अमोनिया गैस या फिर एक्वियस अमोनिया, दोनों में से कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो वैसे तो जनरली वेरी लार्ज अमाउंट में इसका क्या चाहिए, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। However, so very high concentration of ammonia will inhibit the production of glutamic acid. Okay, यहाँ पे हम लिख देते हैं, वैसे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, सो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन कैन inhibit glutamic acid प्रोडक्शन। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो है फ्रेंड्स, ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये जो साल्ट्स हैं यहाँ पे, सो दे कैन आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच। सो ये आल्सो हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प इन maintaining the pH। so pH मेंटेन करने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ फैक्टर्स। अब ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, सो इट इज रिक्वायर्ड हियर इज, सो ग्रोथ फैक्टर्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ फैक्टर्स होता है, यहाँ पे चाहिए होता है, दैट इज बायोटीन। ठीक है, तो बायोटीन यहाँ पे चाहिए होता है फ्रेंड्स। सो इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। और इसका कंसंट्रेशन शुगर का कितना यूज कर रहे हैं उस पे ये निर्भर करता है। ओके, सो मीडियम में अगर फॉर एग्जांपल
So depends on sugar concentration. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, so if medium contain 10% glucose, then we require 5 mg per liter बायोटिन। ठीक है, तो शुगर पे निर्भर करता है कि इसमें कितना ग्रोथ फैक्टर या बायोटिन हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर शुगर कम है तो बायोटिन भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो कुछ स्ट्रेन को क्या चाहिए, सो सम स्ट्रेन रिक्वायर्स some strains are required cysteine। ठीक है, cysteine भी चाहिए होता है। ओके, cysteine क्या होता है, इट इज वन ऑफ द अमीनो एसिड। ओके, cysteine, L-cysteine, so this is another requirement। देन चाहिए ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ऑर्गेनिज्म को। सो इट इज मेंटेन एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, इट शुड नेदर बी हाई नॉर टू लो। ठीक है, नेदर टू हाई नॉर टू लो। ठीक है, एकदम ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भी होता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अगर ये कम गिरता है तो बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू सीक्रेट लैक्टेट एज वेल एज सक्सिनेट। अगर लो होता है तो लो अगर होता है तो लो कंसंट्रेशन अगर है ऑक्सीजन का तो बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू सीक्रेट लैक्टेट एंड सक्सिनेट, जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो वो बाद में क्या करेंगे, सो दे विल इंटरफियर विद मीडियम, मीडियम में फिर इंटरफेरेंस करेंगे। तो अगर एक्सेस होता है, अगर एक्सेस होता है तो एक्सेस अंडर लो अमोनिया डेफिशिएंसी, मतलब ठीक है एक्सेस है और अमोनिया गिरता है तो तब तक कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर होता है तो सो ग्रोथ का इनहिबिशन करेगा और ग्लूटामिक एसिड का भी प्रोडक्शन इनहिबिट करेगा। सो इट विल आल्सो इनहिबिट growth, so it will inhibit growth and production of L-glutamic acid। ये प्रोडक्शन भी क्या कर देगा फ्रेंड्स, ये कम कर देगा। सो दोनों केस में क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जो डेफिशिएंसी होगी सो दैट विल बी रिड्यूस बोथ केस। ओके, हाई भी है तो भी प्रॉब्लम, लो है तो भी प्रॉब्लम। ये दोनों केस में ग्लूटामिक एसिड की जो प्रोडक्शन है दैट विल बी रिड्यूस। सो नेक्स्ट पॉइंट है फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर फर्मेंटेशन प्रोडक्शन। सो फर्मेंटेशन प्रोडक्शन क्या होगा, दो मेथड से इसका फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि बाय टू स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, टू वेज से किया जाएगा, टू वेज। ठीक है, तो टू वेज से कैसे, सो टू स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। पहली होगी टू स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, टू स्टेज अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस है
तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तैयार करेगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सो इसका कन्वर्शन ग्लूटामेट में कर देगा। सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हियर, सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा पहली स्टेज में, सो इट विल प्रोड्यूस अल्फा कीटो ग्लूटारेट और सेकंड स्टेज में क्या होगा, दिस अल्फा कीटो ग्लूटारेट is converted into glutamic acid। तो ये टू स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा और दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सिंगल स्टेज फर्मेंटेशन और वन स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, वन स्टेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, so same organism will produce, अब यहाँ पे शुगर जो है, शुगर सेम ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दोनों मेथड करके तो इट विल प्रोड्यूस एल ग्लूटामिक एसिड। So this method we use only one organism। ठीक है, only one organism, microorganism। अब यहाँ पे क्या होगा, so this process uses two microorganisms, दो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है एज इट इज, जैसे कि बाकी के प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं, तो दैट इज ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप रहेंगी, सो फर्स्ट स्टेप दैट इज इनोकुलम प्रोडक्शन। पहली स्टेप रहेगी हमारी इनोकुलम प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप रहेगी, यहाँ पे क्या होगा, इनोकुलम का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे तो इनोकुलम प्रोडक्शन के लिए हम मीडियम यूज करेंगे, सो मीडियम फॉर इनोकुलम प्रोडक्शन। अब उसमें क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ कार्बन होना चाहिए, तो दैट इज ग्लूकोज। ओके, उसके बाद बफर या पोटेशियम या फास्फोरस का सोर्स दैट इज K2H-PO4। सो कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्लूकोज, देन उसके बाद K2H-PO4, ये तो बफर का भी काम करेगा, प्लस इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड फास्फोरस। उसके बाद लगेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये दोनों का काम करेगा, दोनों सोर्सेस, मैग्नीशियम भी प्रोवाइड करेगा प्लस सल्फर भी प्रोवाइड करेगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूरिया, ओके, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, उसके बाद लगेगा यूरिया और टैप वाटर। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन दिया है इट इज कंपोजिशन। यहाँ पे केमिकल अगर बात करें तो ये केमिकल्स है, केमिकल या फिर इनको इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं आप, इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब ग्लूकोज का यहाँ पे देखिए ग्राम पर लीटर। सो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन होगा 40, K2H-PO4 का कंसेंट्रेशन होगा 1। ओके, 40 यहाँ पे देख सकते हैं, देन 1। ठीक है, MgSO4 लगेगा 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम के आसपास। ईस्ट एक्सट्रैक्ट और यूरिया लगेंगे 1 and 8, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 1 और यूरिया लगेगा 8 ग्राम और टैप वाटर लगेगा यहाँ पे 1000 ml। तो ये बेसिक कंपोजिशन है। अब इसमें क्या करना है, सो ये मीडियम को स्टेरलाइज करना है। सो स्टेरलाइजेशन करने के बाद, स्टेरलाइजेशन के बाद इसमें क्या करना है, सो ऐड
सुटेबल एंड या फिर इनोकुलेट बोल सकते हैं आप, इनोकुलेट सुटेबल स्ट्रेन ऑफ Corynebacterium glutamicum, ठीक है। प्रोडक्शन स्ट्रेन जो है आप प्रॉपर्ली उसकी ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद क्या करेंगे, इस कल्चर को आप 16 आवर्स तक इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इंक्यूबेशन कंडीशंस क्या रहेंगी, सो 16 आवर्स, ठीक है। 16 आवर्स तक यहां पे टेम्परेचर होगा एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस इज द टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसीजर। अब टेम्परेचर के बाद अगर सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद सो अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ इनोकुलम एडेड टू प्रोडक्शन मीडियम, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद आप क्या करेंगे, सो यू विल ट्रांसफर 6% बाय वॉल्यूम, ठीक है। 6% बाय वॉल्यूम आप क्या कर देंगे, सो विल ट्रांसफर इनटू प्रोडक्शन फर्मेंटर, ओके। तो सिंपल प्रोसीजर है, ये मीडियम है आपका, उसको स्टेरिलाइज करना है, इनोकुलेशन करना है, उसके बाद इंक्यूबेट करना है, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इनोकुलम का प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, अब मीडियम कौन सा, दैट इज प्रोडक्शन मीडियम। तो प्रोडक्शन मीडियम की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। सो फिर से फ्रेंड्स, सो केमिकल की अगर बात करें या इंग्रेडिएंट की अगर बात करें, सो इट कंटेन ग्लूकोज, KH2PO4, K2HPO4, यानी कि ये बफर का भी काम करेगा, मतलब दोनों के दोनों काम करेंगे ये। उसके बाद MnSO4, FeSO4, MnSO4, उसके बाद FeSO4। सो ये जनरली के हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ओके, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद इसको लगेगा यूरिया, बायोटीन, ओके, यूरिया लगेगा, बायोटीन लगेगा, MgSO4 लगेगा, MgSO4, ये MgSO4 है, MnSO4, 4H2, उसके बाद आपको लगेगा यूरिया, उसके बाद बायोटीन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट इसकी होगी। तो इसमें क्या करना है, परसेंट कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज इज प्रेजेंट एट अराउंड, सो इट इज परसेंट कंपोजिशन अगर देखें तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट एट अराउंड 10% concentration, K2HPO4 at 0.05% concentration, then again KH2PO4, K2H2PO4, so both are required at same concentration, मतलब दोनों के दोनों बफर का काम कर रहे हैं। then MgSO4 at 0.025,
0.025 इस कंसंट्रेशन में लगेगा। देन FeSO4 इज रिक्वायर्ड एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.001, so both 0.001, MnSO4 0.001, so okay both. Then urea 0.5, urea it is required at 0.25, और बायोटिन जो है अभी इसका कंसंट्रेशन परसेंट में नहीं रहेगा, मिलीग्राम में रहेगा, दैट इज 2.5 mg पर लीटर। ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका कंसंट्रेशन होगा। तो दिस इज द प्रोडक्शन मीडियम। अब इस मीडियम का क्या करना है आपको, फिर से स्टेरिलाइजेशन करना है। ओके, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद आपको इसको क्या करना है, यूज फॉर प्रोडक्शन। जो ऑलरेडी हमने क्या किया है, इनोकुलम ऑलरेडी प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस, that is third process, fermentation, okay, process। तो fermentation process में क्या क्या steps होते हैं? So it is carried out for 40 to 48 hours at 30 degree temperature, okay। पहले तो टाइम 40 to 48 hours, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए। सो pH, सो इट इज एडजस्टेड अराउंड pH, सो इट इज एडजस्टेड टू 7 to 8, ठीक है। 7 to 8 के आसपास इसका pH होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल से अल्कलाइन तक इसका pH होना चाहिए। सो इसमें बाद में क्या करते हैं, we add urea added intermittently, ठीक है। बीच बीच में क्या करेंगे, आप यूरिया को ऐड करते रहेंगे, सो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो अराउंड क्या होता है, सो अराउंड 50% sugar, so it is converted into amino acid। जो हमारा एसिड है अमीनो एसिड, सो यहाँ पे 50% शुगर क्या हो चुका है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारी स्टेप्स क्या होती है, टेम्परेचर की कंडीशन, पीएच, ये सारी चीजें यहाँ पे लगती है। तो एक बार फ्रेंड्स इसका जो पूरी प्रोसेस होती है, तो वो पूरी प्रोसेस को हम रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे मीडियम जो लगेगा, ओके, सो यहाँ पे मीडियम, सो मीडियम, ठीक है। मीडियम कौन सा लगता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मीडियम कंपोजिशन। मीडियम की अगर कंपोजिशन की आप बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो कार्बन का सोर्स क्या हो सकता है, सो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मोलासेस, या फिर क्रॉप का हाइड्रोलाइजेट। नाइट्रोजन सोर्स क्या होगा, यूरिया यहाँ पे होगा, ठीक है। कार्बन का सोर्स क्या हो सकता है, ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे क्या हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं। फ्रुक्टोज, मोलासेस, क्रॉप हाइड्रोलाइजेट, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे लगते हैं हमें। नाइट्रोजन का सोर्स इंटरमीडिएटली, नाइट्रोजन का सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे आप, फॉर एग्जांपल यूरिया ऐड कर सकते हैं। दिस इज द स्टेप। देन
एक्सक्रीशन इंडक्शन। अब एक्सक्रीशन इंडक्शन मतलब क्या, सीक्रेट करना है हमें जो एसिड। सेकंड स्टेप होगी यहाँ पे एक्सक्रीशन इंडक्शन। ठीक है, एक्सक्रीशन को क्या करना है, इंड्यूस करना है। तो क्या क्या चीजें लगती है हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो बायोटीन लिमिटेड मीडियम बना सकते हैं आप, बायोटीन लिमिटेड मीडियम। ओके, बायोटीन लिमिटेड मीडियम यहाँ पे बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट एंटीबायोटिक, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, उसके बाद एंटीबायोटिक, इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर का शॉक, टेम्परेचर ऑफ शॉक, टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। अब कल्चर की कंडीशन में पता है क्या क्या होती है, तो सो कल्चर कंडीशंस, कल्चर कंडीशंस, ठीक है। कल्चर कंडीशन, तो पीएच कितना लगेगा, टेम्परेचर कितना लगेगा। पीएच लगता है अराउंड 7 से लेके 8 के आसपास इसका पीएच लगता है। टेम्परेचर कितना लगेगा, इट इज अराउंड 30 से लेके 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर रहेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद ऑक्सीजन भी इसको लगता है। सो द प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सो ऑपरेशन का मोड कौन सा हो सकता है, ऑपरेशन मोड। सो व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मोड ऑफ ऑपरेशन वुड बी स्टर टैंक बायोरिएक्टर। ओके, स्टर टैंक, स्टर टैंक बायो रिएक्टर। ओके, सो स्टर टैंक बायो रिएक्टर आप यूज कर सकते हैं। और बैच, फीड बैच, बैच या फिर फीड बैच ऑपरेशन क्या कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करेंगे आप, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, सेल का सेपरेशन करना पड़ता है। ओके, सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेल सेपरेशन करेंगे आप, सेल सेपरेशन, ठीक है। सेल का सेपरेशन होने के बाद क्या करेंगे आप, सो कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करेंगे आप उसको, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। उसके बाद अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे पीएच क्या करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके पूरे के पूरे इसकी फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है सिस्टमैटिकली। ओके, तो तभी ये आप प्रोसेस जो है प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस है। अभी इसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। Diagrammatic representation of glutamic acid production plant. So here you can see the nutrients which are transferred in dissolving tank. So after their sterilization they are sent to buffer. So from buffer tank, so now they are transferred to fermenter. So inoculum is also transferred to fermenter. So in addition to inoculum, ammonia as well as other constituent are also transferred there. So the fermenter
is a place where fermentation is undergoing, or it is an equipment, so where fermentation process is occurring. So during its purification, so fermentation broth is transferred to cell separator. सेल सेपरेटर में भेजा जाता है, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है बाय यूजिंग एनायनिक एक्सचेंजर. सो देन जो कुछ भी अमोनिया वहाँ पे एक्स्ट्रा बचता है, सो दैट इज यूज और रीयूज फॉर फर्दर फर्मेंटेशन प्रोसेस. सो उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद सो इट अंडरगो इवेपोरेशन. So now we have a crystallized glutamic acid in our hand. So this is the our pure product and final product. So friends, please go through this chart. इस चार्ट को आप क्या कर लीजिए, अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए. So this is the simplest diagram. Thank you for watching this video.